Hello, my dear student. In last video, I had discussed about the nth term of an AP. So, how can you compute or how can you find out the nth term of an AP? How can you find out common difference and first term and number of terms? ये सारे के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था. आज उसका थोड़ा आगे चलते हुए उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. वही फॉर्मूला मैं फिर से दोहराता हूँ, थोड़ा आप देखो. फॉर्मूला को पहले देखो, बाद में प्रॉब्लम हम करते हैं. तो फॉर्मूला क्या है? पहला वाला फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन मतलब क्या है? ए एन मीन्स द nth टर्म ऑफ एन ए पी. Similarly, what is about A? A means the first term and N means the number of term and D be the common difference. Common difference. Okay? ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी कुछ किए थे. अब इसको मैं रिपीट और ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ. फॉर्मूला रिकॉल कर दिया. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ टुडे I want to discuss another formula, that is Sn. Sn means what? Second formula is Sn. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So, first of all, I want to discuss about what is Sn. Sn means the sum of the AP, sum of the number of AP. यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर टर्म हम निकालते थे, n टर्म निकालते थे. ये सम ऑफ द टर्म्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी वी हैव टू यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 t. इसको थोड़ा कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं, जैसे कि n by 2 into 2a को a plus a लिख लो plus n minus 1 into d. ओके, or n by 2 into a plus n minus 1 into d means what? This is the formula for n. So put n here, a plus n. Okay, Sn is equal to, you can also write down like this, Sn is equal to n by 2 into a plus n. Now in order to direct third, let me discuss the third formula. Third formula is, what is the third formula? In order to find out the n directly, we can, if you know Sn, then you find out the Sn. There is a use this formula Sn minus Sn minus 1 means the preceding term of sum of the term of an AC AP. Okay, Sn minus Sn minus 1 ये वाला फॉर्मूला, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे. अभी इसका डिस्कस करना जरूरत नहीं है. पहले हम ये दो फॉर्मूला को बेस करके कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट में आपको बताऊंगा. Okay? Okay, now let me discuss some question. This is your first question. The nth term of an AP is given 425. A is 5. First term is given 5. And common difference D is given 3. You have to find out the number of terms. Okay? For the formula for n, n means what? A plus n minus 1 into D is equal to n. n का फॉर्मूला है ये. आप जिसकी जगह जो डालना है वो डाल दो. ए के बदले में 5 है, 5 डाल दो. देन n माइनस 1 इंटू डी के बदले में क्या दिया? 3. और n का वैल्यू कितना दिया? 425. सिंपली इसको कंप्लीट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 425. देन 5 से 3 जाने से 2 आता है. 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 425. 3n is equal to 425 minus 2 means 423. n is equal to 423 divided by 3. Cut karo, 1 the 4 1 the, okay, 141. So the value of n is equal to 141. The number of term is 141. ये जो सीरीज है उसका नंबर ऑफ टर्म क्या है? 141. Okay, let me see the next question. Question number 2. See, third and sixth term of an AP
are 13 and 28. Find the first term, common difference and also AP. आपको यहाँ थर्ड टर्म और सिक्स टर्म दिया गया है, बस उतना ही दिया गया है। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और AP भी निकालना है। तो देखो थर्ड टर्म मीन्स third term of an AP is given how much? Third term is 13. Third term means a plus 2d, a plus 2d. अगर फॉर्मूला में पुट अप करेंगे तो a plus 2d आएगा इज इक्वल टू 13 एंड जस्ट एक d प्रीसाइडिंग टर्म आप लिख सकते हो a plus 2d इज इक्वल टू 13। थर्ड टर्म अगर हो जाता है 2d लिखना है, फोर्थ टर्म देने से 3d लिखना है, लाइक दैट। एंड द यहाँ पे सिक्स टर्म मीन्स a plus 5d is equal to given 28. Just computing these two equations, this is equation number 1, this is equation number 2. By subtracting equation 2 from 1, subtract कर लो, subtract करने से क्या आएगा a plus 2d माइनस a LHS में LHS subtract करेंगे, RHS में RHS को subtract करेंगे is equal to 13 minus 28. m plus 2d minus a minus 5d is equal to minus 15. a cancel, 2d से 5d से minus 3d is equal to minus 15, minus minus cancel, d is equal to 5. Then put the value in any one of the equation of equation. a plus 2d is equal to 13. So what about a? a is equal to 13 minus 2d or 13 minus 2 into d is 5 means 13 minus 10. So a is equal to 3. The value of a is equal to 3. Okay. Value of d is equal to 5. Value of a is equal to 3. Now find out the AP. AP means first term is a, 3, common difference a plus d means 3 plus 5 means 8. ऐड करके एक डी ऐड करके जाना है, देन 8 प्लस 5 क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 आया है, ऐड करके जाओ पहला वाला। नाउ फाइंड द एपी। एपी का क्या है, वही हमको a प्लस डी, a प्लस 2d लाइक दैट एपी निकालना है। तो a क्या हुआ, a इज इक्वल टू 3, a प्लस d मीन्स 3 प्लस 5 8, a और 8 के 5 a से 5 एक एक डी ऐड करके जाओ, 8 प्लस 5 13 like that. This is the AP. Okay. यहाँ पे तीन आंसर है। पहला कॉमन डिफरेंस आ गया 5, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड AP 3 8 13 like that. Okay. Okay. Now see the third question. Find the first negative term of the given AP. यहाँ पे AP आपको दिया गया है, आपको पहला नेगेटिव टर्म निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें हार्डवर्ड नहीं, आराम से देखो। यहाँ पे सीरीज क्या दिया है एपी का, एपी सीरीज दे दिया, ये एपी दे दिया तुम्हारा, एपी जोड़िए तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 225 एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकंड माइनस फर्स्ट मीन्स 222 माइनस 225 इट इज माइनस 3, कॉमन डिफरेंस आ गया। आपको यहाँ क्या करना है, पहला वाला नेगेटिव टर्म निकालना है, मीन्स लेस देन 0। आपको मालूम है 0 से जितना सारा नेगेटिव टर्म होता है 0 से लेस होता है। आपको क्या फॉर्मूला में पुट अप करना है, ये an इज लेस देन 0, इसमें पुट अप करना है। n का फॉर्मूला क्या है, डाल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज लेस देन 0। a का वैल्यू पुट अप करो, 225 प्लस n minus 1 into d means minus 3 is less than 0. 225 minus 3n minus plus 3 is less than 0. अब क्या हुआ, 225 plus 3 228 is less than 3n माइनस था, उधर जाने से प्लस हो जाएगा 3n, और यू में से 3n is greater than 228, n is greater than 228 by 3, कट करो, 3 7 जा 21
3 6 जा 28 मीन्स n इज ग्रेटर देन 76 वाला टर्म। 76 वाला टर्म मीन्स उसका जस्ट सक्सेसिव वाला टर्म आपको लेना है, n इज इक्वल टू 77। तो द 77th टर्म, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, द 77th टर्म of the given AP is the first term of the first negative term of FP is the 77th term. Okay, 77 टर्म यहाँ लिखने के लिए स्ट्रेस नहीं है, मैं नहीं लिखता हूँ, आपको लिखना है द नेगेटिव टर्म ऑफ एन AP is 77 वाला टर्म। ओके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया एन जो सम ऑफ द अनंत टर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा एसन की ओर जाते हैं, कैसे हम एपी का जो टर्म्स देता है उसका सम कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला एसन। एसन इज इक्वल टू, मैं आपको फार्मूला बता दिया था, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एसन, एसन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सेकंड वाला फार्मूला भी बताया था, एसन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में लिखा हूँ, देखो यहाँ एक सीरीज दिया गया है, एक एपी दिया गया है, एपी इज गिवन लाइक दिस -5 प्लस -8 प्लस -11, ये सबका सम निकालना है, जिसका कि nth टर्म दिया है -230। तो कैसे हम इसमें निकालेंगे, तो ऐसे निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला आपको तो ऐसे नहीं को मालूम है, लेकिन इससे पहले हमको n मालूम नहीं है, n पहले मालूम करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले आपको a कितना है निकालो, यहाँ पे a कितना है, a मीन्स -5, d मीन्स -8 माइनस ऑफ -5 मतलब -8 प्लस 5, d इज -3, d -3, आपको an तो दिया है, an दे दिया, कितना है -230, ये सारा का वैल्यू इसमें डालो, तो an के बदले में डालो -230 इज इक्वल टू a मीन्स -5 प्लस n-1 तो हमको मालूम नहीं है, n का वैल्यू निकालना है, d इज इक्वल टू -3। आपको इसको कंप्लीट करो, -230 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 3n माइनस प्लस 3 और -230 माइनस इज इक्वल टू -2 माइनस 3n, क्योंकि 3 -5 से जाने से -2 रहता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मीन्स 5 से 3 जाए -2 रहा, -2 माइनस 3n। ओके, अब इसको कंप्लीट कर लो, -230 इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालो, 2 प्लस 3n कट गया, तो 230 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n और 3n इज इक्वल टू 230 से 2 जाने से 228, n इज इक्वल टू 228/3 मीन्स हाउ मच, n इज इक्वल टू 2 3 7 जा 21 3 6 जा 18, n इज इक्वल टू 76 का n आ गया 76। अब आप आराम से Sn निकाल सकते हो। Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a, सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। n/2 मतलब n का वैल्यू कितना है, 76 आया, 76/2 इंटू a कितना है -5 और n है -230। ओके, तो सॉल्व कर लो, इसमें क्या आएगा, यहाँ थोड़ा स्पेस से मैं कर लेता हूँ। ओके, यहाँ देखो ये वाला यहाँ करता हूँ, समझ में ठीक से देखो, यहाँ से ये कर रहा हूँ, 76/2 मीन्स 2 1 जा 2 कितने जा 2 3 जा 6 और 1 2 8 जा 38 आ रहा है, 38। ओके, इंटू ये क्या हुआ -230 -5 मीन्स -235। ओके, 38 मल्टीप्लाइड बाई -235, मल्टीप्लाई कर लो, 38 235 को 38 में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस
2 रहा 8 2 जा 16 प्लस 2 18 और 3 में 3 5 जा 15 ओके 3 3 जा 9 प्लस 1 10 0 रहा 3 2 जा 6 प्लस 1 7 0 8 plus 5 13 okay and 8 plus 1 9 और ये रहा 7 7 9 3 this is the answer for S and sum of the given sequences Sn is equal to -7930 okay आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना है क्रॉस चेक कर लो क्या आएगा आंसर ओके यार वीडियो कर दोगे so this is there is a mistake 1 plus 7 means 8 okay Sn is equal to -8930 not 7930 8930 1 plus 7 8 हुआ है okay okay now see the next question the first and last term of an AP are 5 and 45 and their sum is 400 find the number of terms and common difference तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म दिया है मतलब a इज इक्वल टू 5 दिया है एंड लास्ट टर्म मीन्स an दे दिया 45 दे दिया एंड सम ऑफ द टर्म Sn भी दे दिया Sn इज इक्वल टू दे दिया 400 we have to find out the common difference and the number of term okay so as you know the formula for Sn is equal to n by 2 into a plus a put the formula put the value of all the values that are given here Sn is equal to 400 instead of Sn put 400 then n by 2 means we don't know the value of n is equal to हमको पता नहीं है और क्या है इसमें a दे दिया है a का वैल्यू डाल दो a कितना है 5 और n दे दिया 45 इसमें n निकल जाएगा अब निकाल दो n बोलो तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है 400 into 2 means 800 800 is equal to 45 plus 50n then n is equal to 800 by 50 कट कर लो 5 कितने जा 16 जा ओके n is equal to 16 n is equal to 16 अब फिर से हमको n फॉर्मूला में जाना है n का वैल्यू दे दिया है इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा a ये तो हो गया हमारा n निकल गया अब कॉमन डिफरेंस निकले कैसे n का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 अब a का वैल्यू कितना है 5 डाल दो n का वैल्यू आया कितना 16 माइनस 1 मीन्स 15d इज इक्वल टू 45 देन 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5 40 तो d इज इक्वल टू 40 by 15 5 3 जा 5 8 जा d is equal to 8 by 3 this is the common difference and this is the number of term n is equal to 16 okay तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कैसे Sn का फॉर्मूला यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम इतना सारा बहुत सारा प्रॉब्लम तुमको बुक में मिलेगा मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ एक बात आपको ध्यान में रखना है कोई भी चीज़ निकलने से पहले हमको an a d और क्या है कॉमन डिफरेंस d एंड नंबर ऑफ टर्म n एंड Sn ये 5 चीज़ में से किसी की 4 के बारे में अगर हमको दिया गया है तो फिर वाला निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी फार्मूला उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और जो भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे अब तक के लिए इतना है थैंक यू